सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन सबसे पहले जानते हैं हम लोग व्हाट इज अल्काइलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइलेशन। देन अल्काइलेशन refer to replacement of proton from aromatic hydrocarbon with alkyl group to form alkyl benzene. Means in this reaction we get the product alkyl benzene. Now कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन takes place in the presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3, AlBr3, FeCl3, FeBr3, etc. These Lewis acid act as catalyst in Friedel-Crafts reaction. In Friedel-Crafts alkylation, carbocation is act as electrophile, and there is possibility of carbocation rearrangement. There is possibility of carbocation rearrangement by shifting H- shift, pH shift and methyl shift. Now अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का हम लोग देखते हैं कैसे मैकेनिज्म इसका टेक्स प्लेस करता है, किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। मीन्स फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है? इट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ अल्काइल हैलाइड CHR-CH2Cl in the presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3, and here the formation of product is CH2R. This is called as alkyl benzene. तो इसमें अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो कैसे इस तरह का मैकेनिज्म टेक्स प्लेस करेगा। द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में क्या होगा,
ये जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास RCH2Cl react with this Lewis acid anhydrous AlCl3. This aluminium has vacant d orbital, and this chlorine will transfer these electrons to this vacant d orbitals and give the formation of intermediates like RCH2Cl plus AlCl3 negative charge. In the next step, when this bond will be break, then here we get RCH2 plus charge with AlCl4 minus. This is act as the electrophile, which is called as carbocation. And this carbocation will act as the electrophile in Friedel-Crafts alkylation. Now, in the second step, अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, हमारे पास है बेंजीन प्लस RCH2 plus this will be attacked to have this positive charge, and we get a sigma complex here, hydrogen, and here is CH2R, positive charge here, and this positive charge cation will be resonance stabilized. तो अगेन अगर इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सेकेंड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? व्हेन दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन, देन वी गेट पॉजिटिव चार्ज हियर, दिस H and CH2R. दिस इज द सेकेंड इंटरमीडिएट. नाउ थर्ड इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करें, व्हेन दिस पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन, then we get positive charge here, hydrogen here, and CH2R. This is the third intermediate. Means these are the resonance stabilized. Resonance stabilized. This is the resonance stabilized. And the equivalent structure real hybrid की हम लोग यहाँ पर बात करें, then real hybrid can be shown like this, dotted lines from this positive charge from this carbon to this carbon, and here is the hydrogen and CH2R. This is called as real hybrid or real molecule. Means तो लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में अगर हम लोग बात करें, step 3, in third step there is deprotonation from sigma complex. Deprotonation from sigma complex. तो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बना है, that is like this, positive charge here, CH2R and H, and here is the formation of AlCl4 minus. Here is the minus. This chlorine will be abstract this proton, and the bond of this hydrogen will shift towards this direction, so that this compound will gain the aromaticity and becomes stable. So finally we get CH2R plus HCl along with AlCl3. So this will be give the final product, that is alkyl benzene. कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग
what happens when benzene is treated with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, बेंजीन is treated with propyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3। और एक और प्रॉब्लम लेते हैं थर्ड, बेंजीन प्लस Cl again in the presence of anhydrous AlCl3। no, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे पॉइंट ऑफ व्यूज। कई बार जे में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की हम लोग, बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है क्या इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा अभी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दैट इज द CH3 प्लस, मीन्स दिस इज द मिथाइल कार्बोक्टाइन। तो बेंजीन जो अटैक करेगा दैट इज दिस मिथाइल कार्बोक्टाइन, और जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर प्रोडक्ट का, वो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जैसे मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है प्रोटोन, दिस प्रोटोन इज रिप्लेस्ड बाय दिस CH3 ग्रुप, मीन्स यहाँ पर प्रोटोन की जगह पे क्या आ जाएगा भाई CH3 एंड विच इज कॉल्ड एज टोलुईन। दिस इज द टोलुईन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जैसे ही AlCl3 Cl को अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा भी, तो यहाँ पर जो कार्बोकटाइन जो बनेगा यहाँ पर, वो कार्बोकटाइन क्या बनेगा, लाइक दिस। अब कार्बोकटाइन बनने के बाद हमें यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रुक जाना है, क्योंकि जब भी हम एक स्टार्टिंग में एक पॉइंट देखे थे हम लोग, कार्बोकटाइन इज द इलेक्ट्रोफाइल, और जब कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल है देन देयर इज द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जो कार्बोकटाइन हमारे पास बना है, क्या वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है, बाय शिफ्टिंग। तो ये जो कार्बोकटाइन है दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकटाइन। अब इस 1 डिग्री कार्बोकटाइन में से क्या 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकटाइन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन CH3। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी अट्रैक्ट दीज पेयर्स, ये इस हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी करेगा और इस मिथाइल ग्रुप को भी करेगा। मीन्स ये तो दोनों हाइड्रोजन बट यहाँ पर क्या है मिथाइल ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर माइग्रेशन स्पीड की बात करें तो किसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो स्पीड जो है वो माइग्रेशन एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो H- की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है मिथाइल ग्रुप से, CH3 से। मीन्स यहाँ से जो मूव करेगा सबसे पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ H-, वो क्या करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ले लेगा। मीन्स बाय शिफ्टिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, H-1 टू शिफ्टिंग। ड्यूरिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग वी गेट हेयर 2 डिग्री कार्बोकटाइन, and we know that this 2 डिग्री कार्बोकटाइन is more stable than 1 डिग्री कार्बोकटाइन। means during rearrangement we get the more stable कार्बोकटाइन। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, मीन्स ये जो 2 डिग्री कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है दिस विल बी फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। तो दो तरह का प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल सकता है हमें, एक मेजर एंड एक माइनर। तो हमें पता चला गया यहाँ पर जो कार्बोकटाइन है यहाँ पर वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो जब 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन गया तो हाइड्रोजन जो रिप्लेस्ड होगा वो इस ग्रुप के साथ होगा, और फॉर्मेशन जो हमें फाइनली मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा उसकी जगह पे यहाँ पर आ जाएगा भी दिस प्रोपाइल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, isopropyl benzene, या सिंपली वी कैन से दैट दिस इज क्यूमीन। अब कई बार क्वेश्चन जेई में इसके आगे भी पूछा गया है, जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन है हमारे, यहाँ पर X प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर दिस X विल बी पास्ड ओवर O2, वी गेट बाई, एंड दिस बाई प्रोडक्ट इज हीटेड, वी गेट Z+,
एसीटोन। तो फाइनली हमें बताना है कि व्हाट विल बी दिस जेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट जेट, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको ट्राई करेंगे, इसको देखेंगे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो इसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा, क्या कार्बोकटाइन जनरेट होगा। जैसे Cl यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कार्बोकटाइन जो यहाँ से जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा भाई। और ये कौन सा कार्बोकटाइन, जिसे 2 डिग्री कार्बोकटाइन। अब जैसे कार्बोकटाइन बन गया तो हमें फिर देखना है क्या इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है H। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, अगेन हमने ऊपर देखा कि जो माइग्रेशन स्पीड जो है वो H- की ज़्यादा होती है CH3- से। तो यहाँ पर अगेन H-1 2 शिफ्ट। तो जैसे ही H- अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो आ जाएगा दैट इज फ्रॉम दिस कार्बन, और यहाँ हियर इज हाइड्रोजन। दिस कार्बोकटाइन इज अ 3 डिग्री कार्बोकटाइन एंड वी नो दैट दिस 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तब ये जो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट दैट विल बी फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। तो जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा भी वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बेंजीन। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किस ग्रुप के साथ, ये लाइक दिस। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम चलते हैं दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन।